Hello everyone and welcome to the trend. So in today's topic we'll be discussing about kingdom plenty in brief and kingdom animalia we will cover in next video. So this is the previous three kingdoms I explained you in the previous video. So in this video let us discuss about kingdom plenty. This will also include the chapter 3 of class 11 biology. This is a part of biological classification. My name is Pankaj Chetri and let's start. So first of all, what is plant kingdom? Kingdom Plantae consists of all the eukaryotes, chlorophyll containing organisms commonly called plants. Okay, तो plant kingdom में क्या है? जो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोट्स मतलब मल्टीपल सेल्स होते हैं और सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके. तो chlorophyll containing organisms. So chlorophyll is a green pigment present in plants due to which they are able to synthesize their own food with the help of sunlight. Okay, the plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. Okay, तो chloroplast मतलब it is an organelle that conduct photosynthesis. Okay, और जो photosynthetic pigment which जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल. तो और द मेन पॉइंट इज वो लोग का सेल वॉल होता है. प्लांट मेन है सेल वॉल, दे कंसिस्ट सेल वॉल. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल होता है. तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सो सेलुलोज मतलब जो प्लांट्स को स्टिफ और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है ये सेलुलोज. ओके, तो plant kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, which we'll be discussing in brief. Okay, life cycle of a plant have two distinct phases: the diploid saprophytic and haploid gametophytic, that alternate with each other. So let us discuss about algae. So algae क्या है? Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organisms. They occur in variety of other habitat, moist stones, soils and woods. तो एल्गी का होता है क्लोरोफिल, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था. क्लोरोफिल इज अ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच दे आर एबल टू फोटोसिंथेसिस देयर ऑन फूड. और थैलोइड मतलब थैलोइड स्ट्रक्चर मतलब थैलोइड इज अनडिफरेंशिएटेड. ओके, अनडिफरेंशिएटेड है थैलोइड स्ट्रक्चर, ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और सिर्फ पानी में रहते हैं और ज़्यादातर स्टोन्स, सॉइल्स और वुड में पाए जाते हैं. उनका साइज बहुत वेराई करता है और छोटे से वोल्वोक्स भी होते हैं, छोटे से कॉलोनियल टाइप वोल्वोक्स होते हैं और फिलामेंट के फॉर्म में उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा भी होते हैं. और उसके बाद एल्गी प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. ये तीनों टाइप मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन. जो फ्रेगमेंट्स है, अगर आप एल्गी है ये और अगर आप इसको काट दो तो जो काटा हुआ पीस है उससे अपने आप ये लोग फिर से डेवलप कर देंगे. तो ये फ्रेगमेंटेशन है. एसेक्सुअल reproduction by production of different types of spores. So sexual reproduction is by different types of spores. जो spores होते हैं, जो pollen grain में spores होते हैं और sexual spores होते हैं, उससे वो है sexual type of reproduction. और sexual reproduction by fusion of two gamete, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 23, 23, 46 होते हैं zygote में, वैसे टाइप से sexual reproduction. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Okay, at least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Okay, certain marine and red algae produces large amount of hydrocolloids, example algin and carrageen, which are used commercially. Agar is one of the products obtained from Gelidium and Gracilaria arte, used to grow microbes and preparation in certain ice creams or jellies. So ये भी important है. So this is also important. और algae are divided into three classes: chlorophyci, phycophyci and rhodophyci. उसको डिस्कस कर लेते हैं हम. तो क्लोरोफाइकी क्या है? क्लोरोफाइकी को हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं. वो लोग को ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग के पास पिगमेंट्स है. जो पिगमेंट्स डोमिनेंस है पिगमेंट वो है क्लोरोफिल
ए और क्लोरोफिल बी। मैंने आपको पहले बताया था जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होते हैं जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस। सो दिस यू हैव रेड इन क्लास 10 स्टैंडर्ड। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. Pyrenoid storage bodies है जो located in the chloroplast. Pyrenoid क्या करता है, जो this involves in carbon fixation and starch formation and storage. ये उसमें यूज करता है, कार्बन फिक्सेशन में भी यूज करता है, यूज होता है, स्टार्च फॉर्मेशन में भी यूज होता है और स्टोरेज के टाइम में भी यूज होता है। तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ओके, तो सेल वॉल जो है मैंने आपको बताया, सेलुलोज क्या करता है, जो रिजिड और स्ट्रॉन्ग रखने में ट्रीज को हेल्प करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। और इट इज मेड अप ऑफ inner layer of cellulose and outer layer of pectose. Vegetative reproduction is by fermentation. I discussed earlier fermentation or by formation of different types of spores. तो इसको क्या होता है, different types of spore formation. Spore formation क्या है, मतलब एक सेक जैसा होता है जिसमें स्पोरेंजिया बोलते हैं, उसमें से अगर ये ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट होने के बाद माइन्यूट स्पोर्स वो वहां से निकल जाते हैं। सो ये अंडर सर्टेन कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, उसके बाद फिर प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो एग्जांपल ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है क्लाइमडोमोनास, वोल्वोक्स, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और चारा। तो ये है क्लाइमडोमोनास। उसके बाद फाइकोफाइकी में आते हैं। फाइकोफाइकी को हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोल सकते हैं, और वो लोग मैराइन हैबिटेट में रहते हैं। वो लोग को ब्राउन एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स बोल के पिगमेंट्स है, जिसकी वजह से इन लोग का कलर ब्राउन होता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन एंड टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल्स। अगर ज़ैंथोफिल्स बहुत कम है तो दे विल अपीयर लाइक ओलिव ग्रीन इन कलर, बट अगर ज़ैंथोफिल्स बहुत ज्यादा है तो दे विल लुक लाइक ब्राउन। So it depends on the xanthophyll pigment. Food storage is complex carbohydrate which may be in the form of laminarin or mannitol. So आपके कुछ एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल पूछता है, जो लेमिनेरिन और मैनिटोल है वो किसका फूड स्टोरेज है, तो इसका ये होगा ब्राउन एल्गी और फाइकोफाइकी। तो ये है फाइकोफाइकी के बहुत सारे, देखो ये ऑलिव ग्रीन है, ये ब्राउन है, ओके, this is brown, it depends on xanthophylls actually, okay। ये सब अंडर फाइकोफाइकी आते हैं, दिस ऑल। इसके बाद आता है रोडोफाइकी। ये लोग को रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि ये लोग के पास रेड पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन है, फाइकोएरिथ्रिन। ये पिगमेंट के वजह से ये लोग रेड अपीयर होते हैं और इन लोग को रेड एल्गी बोला जाता है। मेजॉरिटी आर मेराइन एंड फाउंड मोस्टली इन वार्मर एरियाज। सो मेराइन और फ्रेश वाटर होते हैं। मेराइन मतलब जो ओशियंस और सीज में होते हैं, मेराइन जो वो लोग मेराइन है, और फ्रेश वाटर वहां में रहते हैं जो स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स है वहां में, जहां में सैलिनिटी इज लेस देन 0.05%। They are red thully and most of the red algae are multicellular. The food storage is Floridian stretch. Okay, आपको ये भी याद रखना है, जो फ्लोरिडियन स्ट्रेच होता है वो किसका है, तो रोडोफाइकी रेड एल्गी का है। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation। तो दिस रेड एल्गी ऐसा दिखता है, रेड कलर का है, okay? तो उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स मतलब क्या है, ब्रायोफाइट्स include various mosses and liverworts that are found commonly in moist shaded areas and hills. They lack true roots, stems or leaves. The main plant body of bryophyte is haploid. It produces gametes, so it is called gametophyte. So bryophytes are usually non-flowering plants. वो लोग के पास रूट्स नहीं होते, स्टीम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, जो छोटे छोटे हिली एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, वो है मोजेस। आपको पता है मोजेस, लिवरवर्ट्स, ओके। तो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। सो मेन इज हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मतलब क्या है, हैप्लॉइड में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो डिप्लॉइड में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ओके। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड है।
और ये लोग प्रोड्यूस करते हैं गेमेटोफाइट्स से, गेमेटोफाइट्स होते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर। द मेन सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम लोग कहते हैं एंथेरिडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं हम लोग आर्किगोनियम। ओके, तो ऐसे टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। मोजेस, जिस टाइप मोजेस है ये, लिवरवर्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो फर्स्ट में क्या है, जो गेमेटोफाइट है ये एक मेल ब्रायोफाइटा, और फीमेल ब्रायोफाइटा। ओके, तो इसमें से मेल ब्रायोफाइटा में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंथेरिडियम होते हैं। ओके, तो मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन से स्पर्म्स एंड फीमेल से एग्स जो फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली फॉलो नहीं करता है, उसके बजाय ये मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मतलब क्या है, गेमेटोफाइट में अटैच है ये स्पोरोफाइट, अटैच्ड इन गेमेटोफाइट। ये लिविंग नहीं है, ये फ्री लिविंग नहीं है, बट इट इज अटैच्ड टू द गेमेटोफाइट, और इससे ये गेमेटोफाइट से इसको नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। ओके, जो कुछ स्पोरोफाइट्स है वो रिडक्शन डिवीजन होते हैं, दो मायोसिस होके उसके बाद स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं, डिप्लॉयड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ये स्पोर्स है वो जार्मिनेट होके फिर से गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, ये मायोसिस और मायोसिस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको छोटे से बता देता हूँ। जो माइटोसिस में है वो सिंगल सेल जो डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है। ये सिंगल सेल ही है, उससे यहाँ से डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है, ये माइटोसिस। तो मियोसिस में क्या है, एक सिंगल सेल दो बार डिवाइड होता है, तो प्रोड्यूस 4 सेल्स, और वो लोग का हैप्लॉइड है वो लोग का ईच ऑफ वन ऑफ देम आर हैप्लॉइड, लाइक द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। ब्रायोफाइट्स तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद टेरिडोफाइट्स में आते हैं। व्हाट आर टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स इंक्लूड horsetail and ferns. Pteridophytes are used for medical purpose and soil blinders. They are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. Okay, vascular tissues वो जो मोसेस और लिवरवर्ट्स के था वो लोग के वेस्कुलर टिश्यू लैक करते, ट्रू रूट्स नहीं थे वो लोग के, लेकिन ये लोग का वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम लोग का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोर्स वाटर एंड वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन इन वेस्कुलर प्लांट्स। और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्टिंग शुगर्स, प्रोटीन्स और अदर, वो करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ये सब शुगर। सो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम शुगर्स, प्रोटीन्स और बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, फ्लोएम का काम ये है। तो इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज द लाइफ साइकिल इज द गेमेटोफाइटिक plant. However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true roots and stems and leaves. Okay, the leaves of pteridophytes are small as Selaginella and large as in ferns. तो हम लोग देखते हैं उसके reproductive cycle of pteridophytes. So अभी हम डिस्कस करते हैं pteridophytes. Reproductive cycle of pteridophytes. So reproductive cycle of pteridophytes is dominated by the sporophyte stage of alternation of generation. So ferns में क्या होता है? In fern, the male reproductive organ is the antherium, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म को और प्रोड्यूस और रिलीज करता है स्पर्म को। तो उसी टाइप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्किगोनियम, एट द बेस, जिसके बेस में एग्स होते हैं। सो मेन मीडियम क्या है ये लोग का? वाटर। जो फर्न्स प्रोड्यूस होते हैं वो लोग को वाटर चाहिए स्पर्म को आर्किगोनियम में ले जाने के लिए और फर्टिलाइज करने के लिए एग के साथ। जो पानी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी स्पोरोफाइट बनने में। तो उसके बाद जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो और या जाइगोट फॉर्म हो जाता है, तो वो एक प्रोसेस से जाता है माइटोसिस, जो उसके बाद प्रोड्यूस होता है रूट्स, स्टेम्स और न्यू स्पोरोफाइट्स। द एम्ब्रायोनिक स्पोरोफाइटिक इज इनिशियली कर्ल्ड स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड fiddleheads that unfold as they grow into fronds. सो ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल, आप याद कर लेना। तो उसके बाद चलो देखते हैं
what is next? Next is gymnosperms. So what are gymnosperms? Gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. तो ये लोग को हम नेकेड सीड्स भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को, जिसके कोई कवरिंग नहीं होता है, सिर्फ नेकेड होते हैं वो लोग। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही नेकेड है, ओके। तो जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस ही मतलब नेकेड, और स्पर्म्स आर सीड्स। जो जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स डेवलप होते हैं वो लोग वो कवर्ड नहीं होते, वो लोग वो नेकेड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड shrubs. One of the gymnosperm, a giant redwood tree, Sequoia, is one of the tallest trees species. The root are जनरली टैप रूट, जिनके टैप रूट्स होते हैं, जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो लोग का जनरल टैप रूट होता है। टैप रूट मतलब क्या है, ये हो गया, ओके, ये दिस पकड़ लो, ये प्लांट हो गया। तो रूट मतलब इधर से एक सेंट्रल डोमिनेंट रूट निकलता है जिसके आसपास अदर रूट्स होते हैं, ओके। तो ये टैप रूट है। दिस टाइप्स ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं लीव्स, ये इसका है जिम्नोस्पर्म्स के। The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. ये जो spores होते हैं वो they are used in sexual reproduction. Okay, gymnosperms के। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स का आप देख सकते हैं, जो का सीड फ्रूट, ये सीड है कवर्ड दिस। ये अगर इसको आप फोड़ के देखोगे तो इसमें भी ऐसे मिलेंगे आपको, ओके। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म तो जिम्नोस्पर्म्स की तरह नेकेड नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म्स की तरह नेकेड नहीं होते हैं। द पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स में आफ्टर डेवलपमेंट दे आर प्रोड्यूस्ड इनटू फ्लावर्स, ओके। So they are divided into two groups, dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons मतलब क्या है, ये सीड्स हो गया। अगर इसका सिर्फ एक ही है ये सीड्स तो दिस इज मोनोकोटिलेडन। अगर ये सीड है और इसका दो कोटिलेडन है तो दिस इज डाइकोटिलेडन। कोटिलेडन मतलब क्या है, दिस आर स्टोरेज पार्ट्स, ओके, स्टोरेज फूड रिजर्व ऑफ द सीड। उसके बाद आते हैं द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग टू कोटिलेडन सीड्स। पैरेलल वेनेशन इन लीव्स, जो पैरेलल वेनेशन इन लीव्स बोलते हैं मतलब दिस इज, ये पकड़ लो एक लीव हो गया। तो पैरेलल वेनेशन मतलब कुछ आपने लीव्स में देखा होगा जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना, ये से स्ट्रेट लाइंस होते हैं, दिस इज पैरेलल वेनेशन। जैसे कि आपको पता है जो बनाना ट्री के लीव्स है उसमें क्या है, ऐसे है, ओके। सो ये बीच में से एक ऐसे आता है और इधर से दिस इज पैरेलल से आते हैं, दिस इज पैरेलल वेनेशन। इधर से आता है पैरेलल, इधर से पैरेलल। The male sex organ in flower is stamen. Stamen is the main sex organ. Okay? तो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव साइकिल देख लेते हैं। जो स्टेमन बोल रहे थे, दिस इज स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये पार्ट स्टिग्मा है, ओके। उसके बाद स्टिग्मा है। तो ये जो स्टेमन में जो ये ऊपर का पार्ट है दिस इज एंथर में you will get microspores after mitosis they are turned into pollen grains जो थे, जो pollen grains उसके बाद ये स्टिग्मा में अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद अभी ये लोग को ओव्यूल में घुसना है, तो ओव्यूल में घुसने के लिए they will provide a tube, they will develop a tube from here onwards to the ovule. This is also called pollen tube. जब ये पोलन ग्रेन स्टाइल्स से होकर ओवरी में घुसता है, ओके, तो उधर में जो एग्स है, जो ओवरी में एग्स है वो विद द हेल्प ऑफ पोलन फर्टिलाइज हो जाते हैं। जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। उसके बाद एग्स है, उसके बाद ये एग्स में घुस जाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो जो फर्टिलाइज होने के बाद दे विल फॉर्म ए जाइगोट। तो जाइगोट में जो एम्ब्रायो फूड सप्लाई सीड कोट यहाँ में डेवलप होता है। उसके बाद सीड जर्मिनेट होके ये दूसरा प्लांट फिर से दूसरा मेच्योर फ्लावर में डेवलप हो जाता है, ओके। है एंजियोस्पर्म्स का
तो ये है एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।